Okay, so once again, a very good afternoon to all of you, dear students. As we know, we were discussing narration and we have successfully done the first lecture of narration. And I hope that each and everyone understood the basic of narration, right everyone? आप सभी को अच्छे तरीके से जो इसका बेसिक है नरेशन का आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी that Rosni, Agme, Akash, tell me everyone, is there any type of problem? Good afternoon, everyone. Good afternoon. Now we have to discuss about our topic in grammar, that is narration. Okay, so let us talk about narration, and we have done the first lecture of narration, right, everyone? We have done. So in the first lecture, is there any type of problem? Akash, no problem, sir. No problem. Roshni, very good, everyone. Everyone has to speak, guys. If there are 20 people in this batch, so everyone has to understand. Getting everyone? Right? No problem. किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम जो आप लोगों ने लिखा, मैंने जैसे पीडीएफ इसका अपलोड कर चुका हूं मैं, तो क्या किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आया? आप लोग लिखे होंगे while writing each and everything, you thought that this point is wrong, or maybe there is some confusion regarding that point. So you can ask anyone, guys. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Then I will start asking. मैं पूछना स्टार्ट कर दूंगा आप सभी से. बताओ मेरे को, बताइए लोग. Tell me everyone. मैं पूछना स्टार्ट कर दूंगा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो. सैड और वुड में कंसेप्ट चेंज वाला. Okay, so only we have done the first lecture, right? We have only done first lecture. I will tell you when I will teach that the point shall or would, I will make you understand, and definitely very easily you can understand. Okay, very easily, guys, you can understand about the use of shall or will. Okay, okay, everyone. Okay, so let us start from the beginning before teaching the second lecture. And moving ahead, I would like to speak a summary, in a brief summary, whatever we have read. Okay, everyone, whatever we have read, we have to understood. Okay, so let us start. समझते हैं. Okay, so first of all, we have understood about the definition of narration. What is narration? What is narration? So as we understood about that, narration, it means that a statement. Narration क्या है? एक statement है which has derived by narrate word. It means in Hindi which we say कथन. Okay everyone, उसे हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं. ये narrate word से बना है जिसे हम नरेशन करते हैं. ओके, और नरेशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, राइट एवरीवन? नरेशन का मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट. ओके, नरेशन का मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जिससे आप अपने वर्ड को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो. इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर वर्ड्स बिफोर लिसनर, दैट इज कॉल्ड नरेशन. ये एक तरीका होता है अपने शब्दों को लिसनर के सामने रखकर समझाने का. और ये बात समझ में? गेटिंग एवरीवन? Okay, so I told about narration. After that, I told there are two types of narration. There are two ways to represent your words. There are two ways to represent your words. What is that? First is direct speech and second is indirect speech. Right, everyone? First is direct speech and second is indirect speech. As far as direct speech is concerned, okay, direct speech is concerned, then I told. Okay. Okay. I told everyone, listen everyone carefully. I told that about direct speech, it is a way of represents the word of a speaker without any change. Okay, without any change. And the main word of a speaker are the main words of speaker are represented by inverted comma. ठीक है ना? ये एक तरीका होता है कि हम स्पीकर के वर्ड्स को क्या करते हैं? डायरेक्ट विदाउट एनी चेंज
क्या करते हैं, किसी के सामने रख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा उसने बोला वैसा ही बोल देते हैं। सेकंड तरीका क्या मैंने बताया कि जो मेन वर्ड होता है इसमें वो क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा से इनक्लोज्ड रहता है। अगली बात समझ में। इसके आगे हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। एवरीवन हैज टू हियर, ओके, एवरीवन हैज टू हियर केयरफुली गाइस, after that you will understand. Once again we are recalling, okay, you have to speak with me. If I am committing mistake, then you have to say that, sir, here you have told in the previous class some different thing, right now you are speaking some different. Okay, so it is in your hand while speaking that whether you are understanding or not. It's clarify from that as you are going to listen me very carefully. Okay, तो उसके बाद हमने देखा, उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने देखा क्या, हमने देखा इनडायरेक्ट स्पीच को। ओके एवरीवन, जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच को देखा तो मैंने सिंपल तरीका बताया, इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ ए स्पीकर, ओके, इन ट्रांसफॉर्म वे, ओके। ये क्या होता है, एक तरीका होता है जब स्पीकर के वर्ड को ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल कर, समझ में आ रही बात ना, चेंज कर क्लियर तरीके से बोलते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें मैंने सेकंड टर्म आप सभी को बताया था, ओके, इसमें मैंने सेकंड टर्म आप सभी को क्या बताया था कि ये जो मेन वर्ड होता है स्पीकर का वो क्या होता है, इनक्लोज नहीं रहता है, राइट। उसके बाद हम लोग समझे रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच। I told that you have to only remember one, keep in your mind that there are two types, okay, in speech, that one reporting and second reported. Okay, reporting verb is also called reporting speech principal verb. Okay, okay everyone, I told that in your previous class, right everyone? Okay, so I told the outside of the words from the inverted comma, that is called reporting word, that is called reporting word, I told, okay. But the word which is enclosed by, the word which is enclosed by inverted comma, that is called indirect, that is called reported speech, right everyone, I told, right? Yes or no, Aswin? Yes sir. Okay, getting everyone? Now we have to understand next point that यहां तक क्लियर था हम लोगों का। फिर मैंने क्या पढ़ा है आप लोग को, चेंजिंग करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन देयर विल बी नो एनी चेंज। मैंने यहां तक आप सभी को बताया था। आफ्टर दैट फिर मैंने क्या बताया कि हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं और उसके जगह पे किसका यूज करते हैं, तो दैट का यूज करते हैं। ऑन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा वी यूज दैट कंजक्शन, किसका यूज करते हैं हम लोग, तो दैट कंजक्शन का यूज हम लोग करते हैं, राइट एवरीवन। किसी को कोई प्रॉब्लम, टेल मी, एनीवन गाइस, एनी प्रॉब्लम, टेल मी। ओके, तो हमने ये भी देखा। आफ्टर दैट listen, after that, okay, so the first rule which we have read, that when reporting word, what is called reporting word, outside of the enclosed area, ठीक है ना, जो enclosed area से बाहर का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, reporting word बोलते हैं। so when reporting word is in present tense or future tense, while making it in indirect speech, we do not change the tense of reported speech, okay। हमने देखा, ठीक है, क्या पहला रूल क्या था कि when reporting verb is in present tense or future tense, आपका जब reporting verb क्या हो, present tense में हो या future tense में हो। I told that present tense में हो या future tense में हो, तो जब उसका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब उसका indirect speech बनाते हैं, while making it indirect speech, we do not change the tense, right everyone? Is there everyone who has remembered? क्या सभी को ये बात याद है? Tell me everyone fastly. I'm just giving you chance to do masses to confirm me that you people have remembered whatever I'm saying. Yes, done. Very good everyone. Ragini, Rasmi, Pinky, Agmay, Ayush, Anand, very good everyone. Okay, so after that we have to understand, okay, so as I told
that when reporting verb is in present tense or future tense, we do not change the tense of reported speech while making it in indirect speech. Okay, everyone, is that clear? Okay, so as I am giving you an example, you have to make it. As I told, he says to me, I am playing cricket. He says to me, I am playing cricket. Make it fast. I have to see that who is making it first and right. I have to see, guys. Make it fast. So Kangna has written, he tells me that he is playing cricket. Yes, Kangna, very good. Sumit is also writing, very good. He tells Sumit, you have made it wrong. Okay, आपने इसे गलत बनाया है. ही के साथ tell कैसे लगेगा? Tell me. जब वहां पे says है, so it will also convert into tells, ना? Isn't? Yes, Sumit. Only 2 guys have made. बस 2 ही लोगों ने बनाया है. क्यों? Ankit, Akash, Agmay, waiting for your answer. Rasmi, he tells me that I am playing. Rasmi, sahi hai. He tells me that I am होगा. First person according to subject. अभी मैं पूछता हूँ. I am asking each and every student. Wait, let me ask because you all are making, some of the students are making it wrong. So let me ask once again more. मैंने क्या बताया था? फिर से आप लोगों को याद दिलवाना पड़ेगा. मैंने बताया था ना कि जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. जो फर्स्ट पर्सन आपका आई है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड दैट विल बी ही हियर. इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई, यू हैव टू यूज हियर ही. आई के जगह पे आप सभी को ही का यूज करना है. He says to me, I'm playing cricket. That is your question of direct speech. Convert into indirect. Okay. Make it fast. Okay, guys. One question I'm also giving you. Make it. Is there any problem in sound, dear students? अंकित, क्या इशू है मेरे को बताओ. आपकी साइड इशू है नेटवर्क का, मेरे साइड नहीं है. Try to write the question and try to listen the question in a one time. Okay, okay everyone. चलिए, तो उस यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर चुका था. Am I right everyone? We have discussed, right? Okay, so there are some questions I think which we have to complete. I had given in your homework, right everyone? So let us see that the question. Okay, and before solving the question, let me also recall about the object. Okay, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं. जब say के बाद, after say, if there is an object, what we have to do? Will it convert into tell or will it same? Tell me everyone. Tell me, you have to speak. That will be tell. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay, suppose that it is said and after that object, what will be in indirect speech? What will be indirect speech? Told. Very good. Very good, everyone. Very good. So let us moving ahead, guys, and try to understand some other questions. Okay, some questions which we have to complete. Okay. So we were discussing this question, right, everyone? Am I right? Tell me, am I right or not? No, we have to go back.
So there are some questions. Okay, there are some questions I had given to all of you for making. First of all, tell me how many people have tried. How many people have tried and how many people have done their homework? Tell me. Divyanshu, I have done. Very good. Divyanshu. Only Divyanshu. और किसी ने नहीं बनाया है? Only Divyanshu. Only Divyanshu. Only Divyanshu. Okay. Akash. अंकित. ओके अंकित मैंने नहीं किया है, कोई बात नहीं अंकित. अगर कोई इशू है, अगर उस कारण से आपने नहीं किया, सो डोंट वरी, आप फिर से कर लेना जब आपके पास फ्री टाइम हो. ठीक है? एंड आई होप दैट यू विल डू. ओके अंकित. यस. तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं. कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब प्रॉब्लम होता है तो जब तक मैं उसको समझा ना दूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं. ओके, तो चलिए फिर से देखते हैं. सभी को समझना है. हाँ अंकित, आप हमेशा करते हो, आई नो दैट. चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं. पहला मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था. सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप लोग. कीप योर पेन एंड नोटबुक विथ योर सेल्फ. ओके, कीप. ओके एवरीवन, keep your notebook and pen with yourself and start solving once again these questions. Okay, okay everyone. So first question is that they said to me we help you. They said to me we help you. Okay, this is your question. This is your question which we have to understand. Okay, so make it this question. I have to see that in your masses you have to make this question. I have to see how many students are solving this question in a right way. Okay, okay, so make this question fastly. I have to see how many students are solving this question. The question is second number. They said to me we help you. आयुष आपने गलत बनाया है. कैसे आयुष आपने बनाया ये इस क्वेश्चन को? करने दे. रॉन्ग है कंगना, आपका भी. आपने भी रॉन्ग बनाया है. आपका भी रॉन्ग है आकाश. आपका भी रॉन्ग है. I'm talking about the second question. They said to me, we help you. You have to see that question which I'm telling. Okay, you have to see the question number second. They said to me, we help you. Okay, everyone. Everyone is making this question wrong. Niharika, have you read? Niharika, please open your mic. Niharika. Niharika. Niharika, I said that open your mic. Yes, sir. Okay, how have you made this question? Will you make me understand? And before telling me, tell me one thing honestly. Have you read? आप लोग Yes, sir. इतना इजी नहीं लो इसको. ठीक है निहारिका, आप लोग जो ले रहे हो इतना इजी इसको, ये बहुत गलत है. और ये बात समझ में, नरेशन में प्रॉब्लम होता है. अब मैं आगे जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, वैसे वैसे आप लोग का प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप पीछे वाले पे आप कवर नहीं करते हो, प्रेजेंटली तो मैं तो समझा दूंगा, आई नो दैट, और आप लोग समझ भी जाओगे. बट जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, यू विल गेट प्रॉब्लम. उस समय आपके पास परेशानियां आएंगी, परेशानियां मिलेंगी. अरे बात समझ में. तो इसको इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनाओ, इसको आप लोग बोरिंग चैप्टर बना दिए. किसी का अभी तक आंसर सही नहीं हुआ है. ओके दिव्यांशु, चलो पहले निहारिका आप मेरे को बताओ, क्या आपने प्रैक्टिस किया है, रिवीजन किया है? ऑनेस्टली बताना है.
बताइए तो Yes, sir. क्या है? श्योर? क्या मैं पूछूं? Yes, sir. आवाज से नहीं लग रहा है यार का क्या आपने किया है, पूछो ना। Yes, yes, sir. ओके चलो, मेरे को आप सबसे पहले जो चार्ट मैंने आप लोग को लिखवाया था, ठीक है, Yes, sir. याद है चार्ट वो जिसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में था? इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये सारा मेरे को आप सुना दो फास्टली एंड यू डोंट हैव टू टर्न योर पेज। स्पीक फास्टली। स्टार्ट निहारिका। सर जो फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड वाला था। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, हाँ वही वाला, थर्ड वाला, जिसमें नॉमिनेटिव केस करके भी पढ़ाए थे ना। फेयर Yes, बना sir. है? फेयर हुआ है निहारिका इसका? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बताइए, बोलना स्टार्ट कीजिए। सर फर्स्ट पर्सन का। सारा बताइए ना, जैसे होता है, मैं एक बता दूं आपको, कैन आई? Yes, sir. जैसे नॉमिनेटिव केस आई हो गया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया। वैसे ही सबका एंड स्पीक फास्टली। The second person का होगा you. ऑब्जेक्टिव केस में you. अच्छा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म तो मैंने अभी नहीं बताया, We. आपने कैसे उसको मिस कर दिया? We. और नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में us. और पॉजेसिव केस में our. पॉजेसिव प्रोनाउन में ours. पॉजेसिव केस में आवर और पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है वो? हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है। चलिए और बताओ मेरे को, और क्या क्या मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था, थोड़ा बताओ तो नरेशन का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे फास्टली। सर इन्वर्टेड कॉमा की जगह हटा के डैट लगा देंगे। अच्छा, और आफ्टर दैट निहारिका, यस सर। आफ्टर दैट सही तरीके से नहीं हुआ है डिवीजन। ओके निहारिका, कब तक हो जाएगा? मेरे को ये बताओ ना, कब तक हो जाएगा कंप्लीट? नेक्स्ट श्योरली। Okay, Pinky is saying that sir, I can try. Okay, Pinky, start. यस सर। चलो बताओ पिंकी। रूल बताना है। हाँ सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या रिपोर्टेड पर टेंस और फ्यूचर में रहता, फ्यूचर टेंस में रहता है तो उसका टेंस नहीं सही होता है। Okay, speak fastly. ये ओके सर। आंसर ये से और से के बाद और से के। Okay, Pinky, leave it. So first of all, everyone has to understand I am leaving you for today. Okay, I am not asking today, but in your next class, especially about Pinky, listen. Pinky, let me speak. Pinky. और से Okay, so today I'm just giving you a chance to remember each and everything thoroughly. Okay, listen everyone. In your next class, I will ask to each and everyone. भले उस दिन मेरे को एक भी पॉइंट पढ़ाना ना पड़े, but I will ask to each and everyone. Okay, and if in any case you people are not telling me, then I will call to your parent. Personally, I will call. Okay, getting everyone? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो आप लोग सभी कोई पहला क्वेश्चन रॉन्ग बनाए हैं, थोड़ा सा इसको देखिएगा मेरे साथ। जो ये आपका क्वेश्चन है ना, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, दे से टू मी, यही है ना, वी हेल्प यू। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर में हम लोग किस चीज को सर्च करते हैं? सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। इज देयर सब्जेक्ट? यस, दे इज हियर सब्जेक्ट। दे क्या है? सब्जेक्ट है। ओके एवरीवन, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। देयर इज नो नीड दिव्यांशु राइट नाउ टू मेक इट। आपका रॉन्ग है दिव्यांशु। Yes, I am giving you a question. There are so many questions.
and I said to all of you to open your book and make question. आप इसका प्रैक्टिस बनाइए, मैंने बोला था आप लोगों को। सभी का गलत है, देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन, अभी तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, दे से टू मी वी हेल्प यू, तो मैंने क्या बताया कि जो आपका होता है यहाँ पे, अब कोई मैसेज नहीं करेगा, नो वन विल मैसेज, ओके, ओनली अंडरस्टैंड। आप लोग बीच में इंटरप्ट कर देते हो मैसेज करके, ओके, तो मैसेज नहीं करना है, बस अब समझना है और समझो अच्छे तरीके से। हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट अंटिल यू आर नॉट गेटिंग। ओके, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, एकदम अच्छे से समझेंगे। एक है ना प्रभाव नहीं, हम लोग एक मूवी देखे थे दशरथ मान जी का, राइट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सो बी लाइक दशरथ मान जी। ओके, दशरथ मान जी न थे? यस सर। ओके, तो चलिए वैसे हम लोगों को भी बनना है, हम द माउंटेन मैन। यस सुमित, सुमित खुद माउंटेन है, खुद इसने लिखा माउंटेन मैन, क्या बात है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बनाने से सारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, और इंग्लिश में तो कुछ नहीं, मैथमेटिक्स थोड़े है। चलिए समझते हैं। दे से टू मी वी हेल्प यू, तो मैंने सिंपल तरीका बताया था। दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम चर्चा करते हैं इनक्लोज्ड वाला, तो उसमें हम लोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को सर्च करते हैं। देखो करते हैं, फर्स्ट पर्सन भी प्लूरल फॉर्म में है, उसके बाद क्या है, हेल्प वर्ब है, और यू क्या है आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन है। अब समझना इस क्वेश्चन को, इनडायरेक्ट में बनाते हैं। आप सभी ने कहां तक सही बनाया था, आई एम जस्ट टेलिंग, लिसन, मैं बता रहा हूँ आप सभी ने कहां तक सही बनाया था, मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ओके, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा ओके, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो दे टेल, देखिए ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, तो से टू किस में बदल जाएगा, से टू में किस में बदल जाएगा, टेल में, तो दे टेल मी, ओके एवरीवन, इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वी है, वी फर्स्ट पर्सन का है, प्लूरल फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट, तो वी किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, दे के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, दे, उसके बाद हेल्प। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यू है ना, यहाँ पे क्या है आपका ये यू, तो ये यू कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, दे हेल्प मी। ओके एवरीवन, क्या होगा, दे हेल्प मी, सभी को समझ में आया, दे हेल्प मी, गेटिंग एवरीवन। हाँ दिव्यांशु आपका राइट था। ओके, फोकस करने के लिए यहाँ पे बोले थे। ओके एवरीवन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखो और आप लोग बनाओ। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखो, he says to Sita I love you and your dog। अब चलो इसको बनाओ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सभी कोई बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ करिश्मा आपका भी राइट था, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। He says to Sita, नहीं इसके पहले वाला ना, बिफोर दैट क्वेश्चन, my friend says to me, 1 minute guys, हम लोग किस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, he says to Sita I love you and your dog, so make it fast। he tells Sita that he, गलत हो गया सुमित, once again you have made it wrong। देखो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, टेंस सही तरीके से नहीं पढ़ने का नतीजा है, एकदम माइनर मिस्टेक है, बट यू हैव डन मिस्टेक। सुमित, find your error in your sentence while making it। yes Sumit, right, loves। he tells Sita that he, once again Divyanshu you have also
done the same mistake which has been done by Sumit. Okay. Sumit, here you are committing mistake. Okay, so चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से देखते हैं. रागिनी देखो, he tells Sita that he loves. नहीं, रॉन्ग है निहारिका, कभी भी सीता नहीं आएगा, ठीक है ना. सीता के जगह पे वहां पे उसका प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग. ओके, सीता नहीं होगा निहारिका वहां पे हम लोग उसके जगह पे सीता का जो प्रोनाउन होता है दैट विल बी यूज, ओके, इन द प्लेस ऑफ सीता. So let us see that the question. I'm just telling you the right answer of this question. Listen everyone carefully and understand किस किस का सही था और किस किस का गलत. Okay. So he says to Sita, I love you and your dog. So how will we speak that question? We will speak regarding this question that he, first of all, understand he is here. Subject says to Sita. Sita is here. Sita is here, object. Okay, everyone, Sita is here, object. Okay, so we found here first subject and object. Okay, so let us go into reported speech statement. अब reported speech statement को देखते हैं. उसमें क्या है पहला? I is your first person. Okay, you is your second person. So you have to write पहले first person, second person ऐसे करके बनाओ. At least 20 questions. सारा clear हो जाएगा उसके बाद. And your dog, your भी क्या आपका second person. Okay, चलिए अब हम देखते हैं your dog. Okay, चलिए तो इसको while making it into indirect speech, how will we make? First we will write that because there is an object, here, so we will write says to, converting first tells. So he tells Sita. After that we will remove here inverted comma and use that conjunction. So he tells Sita that. Okay, so see, first I will change according to he. So what we have make here, he loves. अब देखो जनरली होता क्या है, let me tell you in Hindi because everyone has to get it. Okay, सभी को समझना है. तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया आप लोगों को कि आप देख रहे हो ना कि क्या है आपका he, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वर्टेड कोमा होता है, डेट लगा. और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो ही के अकॉर्डिंग, तो ही आ गया. तो ही के साथ प्रेजेंट टेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब 1 का या वर्ब 5 का, वर्ब 1 का या वर्ब 5 का. मैसेज में फिफ्थ फॉर्म. वेरी गुड एवरीवन. तो ये लव्स कन्वर्ट हो जाएगा, लव्स, जो जनरली पहले बार में सभी का मिस्टेक हुआ है, राइट. तो ही लव्स. अब देखो यू है ना, he loves you. तो देखो यहाँ पे ना you ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. ओके, यहाँ पे you जो है आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. तो he loves her and her dog. योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हर ही के अकॉर्डिंग बदलता है ना. सो वी विल राइट हियर हर डॉग. ओके एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, क्या समझ में आया कहाँ का एरर हुआ था? यहाँ पे देखो ना, आई लव यू, तो यू जहां पे क्या और किससे को आंसर बताता है, क्या या किसे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं. दिव्यांशु, यस सर, इन माय सेकंड अटेम्प्ट इट वाज राइट. वेरी गुड. तो क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है कि वंस अगेन आई शुड मेक यू अंडरस्टैंड, मुझे बताना चाहिए आप लोगों को. क्लियर, वेरी गुड. तो आप लोग ना जनरली देखो, ऑक्सफोर्ड उठाओ, उससे नरेशन बनाना स्टार्ट करो. ऑक्सफोर्ड से आप लोग ना नरेशन बना जाओ, एकदम उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स पैसिव वॉइस बना जाओ, सारा क्लियर हो जाएगा. अरे बात समझ में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए. सो यू शुड मेक इट. और ज्यादा कॉस्टली भी ये बुक नहीं पड़ता है. अरे बात समझ में ना. तो चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, आगे का पढ़ेंगे. चलो ये क्वेश्चन को क्या बनाया हो आप लोग, थोड़ा सा मेरे को बताओ तो. द बॉयज said to me, you were our friend and we were your friend. मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, राइट एवरीवन, बना के भी बताया था कैसे बनाना है.
यस और नो? क्या मैंने बताया था कि नहीं बताया था? आप लोग मेरे को बताइए, टेल मी, डिड आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? अच्छा सर सेकंड लास्ट बताया था। ओके चलो इस क्वेश्चन को बता देते हैं। सुन लो सब, कोई एक बार ट्राई करो। चलो 30 सेकेंड्स आप लोगों के पास है। ओनली यू हैव 30 सेकेंड्स टू मेक दिस क्वेश्चन। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। सेकेंड लास्ट बताइए ना। सेकेंड लास्ट वाले क्वेश्चन को मैंने बताया था निहारिका, इस क्वेश्चन को भी फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देख लो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को भी देख लो। निहारिका इज आस्किंग, ओके तो चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखिएगा। सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प। तो मैंने क्या बताया था, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ फ्यूचर वाला आ गया ना, जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते। ओके चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे। सीता विल पहले से टेल में कन्वर्ट है, तो मैंने क्या बोला था, थैंक यू बोल देना है, क्योंकि उसने आपके क्वेश्चन वर्क को आसान कर दिया है, एक स्टेप पहले से चेंज करके दे दिया है। तो सीता विल टेल मी, यहां तक एकदम सही है, एकदम ऐसे ही लिख दीजिए। इन्वर्टेड को हटाइए, दैट का यूज कीजिए। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा सी। और बताओ सी के साथ नीड होगा कि नीड्स होगा, मेरे को ये बताओ, निहारिका आप ही बताओ, सी के साथ क्या होगा, सी के साथ क्या होगा, नीड होगा या नीड्स होगा? नीड्स, वेरी गुड। तो सिंपल सा हो गया, सी नीड्स। और योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आकाश पहले भी इस क्वेश्चन को देख लो। यस आई विल टेल यू। तो क्या हो जाएगा, योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? तो मी माई में चेंज हो जाएगा ना। मैंने बताया था ना, योर क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। अरे देखो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ये जो है कि नहीं है? तो माई हेल्प। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फास्टली बिकॉज वी हैव टू रीड मोर, वी हैव टू रीड मोर टुडे। ओके अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसी को कर रहे हैं फिर से। अब देखो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो डायरेक्ट हम बना के बता देते हैं। द बॉयज टेल मी दैट यू, क्या है आपका सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई वाज, आई के साथ वर्ड का यूज तो होता नहीं, आई वाज। योर क्या है, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड। ठीक है, आई वाज देयर फ्रेंड एंड, अब देखो वी है ना, वी यहाँ पे, तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, द बॉयज। द बॉयज यानी द को, दे को बता रहा है ना, तो देयर हो जाएगा। ठीक है सॉरी, दे हो जाएगा, दे। ओके ये क्या हो जाएगा आपका, दे, और दे के साथ वर्ड, और यहाँ पे योर जो है सेकंड पर्सन को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स। ओके एवरीवन, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी। हाँ करिश्मा आपका सही है, वेरी गुड करिश्मा। किस किस का ये क्वेश्चन राइट हुआ, टेल मी एवरीवन। निहारिका इज सेइंग दैट नो प्रॉब्लम सर, दिव्यांशु नो, ओके गुड मैन। पिंकी बोलिए मेरा भी सही है, मेरा भी सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, शाबाश। ओके चलिए, तो ये तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी को अभी तक हमने रिवाइज किया और एक बार अच्छे तरीके से समझने का कोशिश किया। अब मेरे को लगता है कि अब आप लोग, रश्मि सर मेरा भी सही था, बधाई हो रश्मि। ओके तो अब क्या होगा, अब आप सभी से क्वेश्चन बनेगा। ओके तो आप लोग क्वेश्चन उठाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए। एक जो मेरे सर हैं बहुत अच्छा एक वर्ड बोलते हैं, which I would like to speak with all of you, okay? जो मुझे अच्छा लगेगा आप सभी के साथ में इस वर्ड को बोलूं। जानते हो क्या बोलते हैं, more study more problem, no study no problem।
राइट, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। मीन्स कि अगर आप जितना स्टडी करते हो उतना ही क्वेश्चन पूछता है आपसे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, और जब पढ़वे नहीं करते तो काची का प्रॉब्लम, राइट। वैसे ही था ना आप लोगों के साथ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, बट जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया तो कहीं ना कहीं एरर हो रहा था ना। जब तक आपका नरेशन में एक्यूरेसी सही नहीं होता है, इट मींस दैट यू आर मेकिंग रॉन्ग, आप गलत बना रहे हो, ठीक है। या कहीं पे ना कहीं पे एकदम, जब तक आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये सब सारा चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, वो चेंज करने नहीं आ रहा है, इट मींस कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। सो अगर किसी को प्रॉब्लम हो आफ्टर योर क्लास यू कैन आस्क, अब क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, ठीक है, बट आप लोग कोशिश करो अच्छे तरीके से बनाने का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है सभी को बात, ये होना चाहिए। चलिए, तो अब सेकंड रूल देखते हैं। पहले तो क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में था तो हम क्या करते थे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को जब हम बनाते थे किसमें, इनडायरेक्ट में, तो हम लोग क्या करते थे, चेंज नहीं करते थे टेंस को, लेकिन अब चेंज होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यस। अब तुम लोग याद नहीं कर लेना कि नो स्टडी क्या बताया है, नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। ओके, हाँ, वेरी गुड दिव्यांश, मोर स्टडी मोर सक्सेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलो देखते हैं, अब देखते हैं व्हेन रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है ना, पास्ट टेंस में रहता है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच में, तब क्या होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चेंज हो जाता है। ये जो मैंने बोला, इस एग्जाम्पल को बनाएंगे लोग तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करवाऊंगा, ओके। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से लिख, ओके, ये इस चीज को समझा रहा हूं आपको, समझिएगा आपको। अब चलो देखो, when the reporting or principal verb is in the past tense, all present tense of the direct are changed into the corresponding past tense। यहाँ पे जो ये corresponding past tense है ना, यही मेन वर्ड है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना, जब भी आप इसका नोट्स बनाना ना तो इसी को अंडरलाइन कर लेना और सारा कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब समझना मेरी बात को, ओके। everyone has to understand, everyone has to understand my words which I am telling, okay everyone, listen that I told that when your reporting or principal verb is in past tense, so how can we recognize that it is in past tense? It is very simple, जहां पे भी आपको देखने को मिल जाए ही या दे के बाद जो हम लोग से का यूज करते थे ना, जब ये प्रेजेंट में रहता था तो विल से, या फ्यूचर में रहता था विल से, प्रेजेंट में रहता था तो से या से का यूज करते थे कि नहीं करते थे, हाँ या ना, हाँ या ना, टेल मी एवरीवन। अब दूसरा रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ या ना, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, यस यस। जो जितने लोग इस वर्ड को बोलेंगे ना यस सर, अगर ये वो समझ रहे हैं तो इनको ये समझो कि समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट उनका एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, एकदम क्लियर है। बस कुछ ही बच्चों को समझ में आया, 10-12, क्या फिर से नरेशन पढ़ाना स्टार्ट करूं कि जो 20 स्टूडेंट्स है सभी को समझ में आए? ओके, यस सर यस सर यस सर, वेरी गुड, चलिए सही है। अब सुनिए, समझिए, तो अब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ओके, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ओके, अंडरस्टैंड। सो टेक अ सिंपल एग्जांपल फर्स्ट, एज आई टोल्ड दैट is in the past tense, all present tense of direct are changed into the corresponding past tense, okay। अब समझिए, पहला मैंने ए में क्या लिखा, सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट, अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट, इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज टू कन्वर्ट इनटू simple past tense, okay, understand how? Take an example which has already given here, that is a simple present tense become a simple past tense, okay, understand।
This is your question. Okay, this is your question. He said. So he said is what here? What is he said here? Tell me. It is your reporting verb, right, everyone? It is your reporting verb, right or wrong? Say yes or no. Say yes or no, guys. Tell me. Reporting verb. Yes, sir. Very good. Yes. Reporting verb. Okay. Or reporting verb is in simple past tense or simple present tense? Tell me. In that sentence, reporting verb is in simple present tense or simple past tense? Simple present tense. Simple past, simple past. Very good. Simple past, simple past. Try to listen me carefully. Okay. तुरंत आंसर देने में ना wrong हो जाता है. Okay. So first of all, listen each and every words very carefully, and after that give answer. Okay. So it is in simple past tense. So we got it here. My reporting verb is in past tense. Before that, examples which we have seen, that was the part of simple present tense or present tense or future tense. Okay. Okay. So now see that sentence. I like fish very much. I like fish very much. ये कौन से tense का है? Tell me. ये कौन से tense का है? I like fish very much. ये कौन से टेंस का है? क्या मेरे को बताओ. दिव्यांशु ने सही बताया. क्या बात है दिव्यांशु? वेरी गुड. पिंकी वेरी गुड. पिंकी, आयुष वेरी गुड. करिश्मा वेरी गुड. एवरीवन इज सेइंग वेरी गुड. ओके. यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का. अब मेरी बात को समझना. अब यहीं से ये सारा कॉन्सेप्ट का क्या होता है ना, विंडो ओपन होता है. अरे बात समझ में ना. यहाँ से हम लोग सारी चीज को बहुत अच्छे तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड. सारा कुछ अभी जो मैंने समझाया यहीं पे रहना है. दिमाग को इधर उधर नहीं लेके जाना है. समझ में आ रही बात ना. खिड़की से बाहर यहीं पर एकदम. अभी आपका माइंड कहाँ रहना चाहिए? एकदम इसी पॉइंट पे. आड़ी बात समझ में ना. कहीं इधर उधर नहीं. ठीक है. कहीं इधर उधर नहीं. अब देखो मैंने क्या बोला, फिर एक बार बता रहा हूँ. ही सेड. मेरा क्या है ये? मेरा क्या है ये? तो पास्ट टेंस में. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में. और इधर वाला क्या है मेरा? प्रेजेंट टेंस में. तो यही बात है. जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो देखो ही सेड. यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं था. नहीं तो सेड किसमें बदल जाता है? टोटल में बदलता है ना. तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा. मैंने क्या यूज किया? दैट. फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही. लेकिन देखो ये मेरा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब रिपोर्टेड स्पीच में जो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, वो मेरा अब सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा. और सिंपल पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट एवरीवन. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. क्या समझ में आ रहा है? तो लाइक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही लाइक्ड फिश वेरी मच. He liked fish very much. क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आया? कैसे? तो अब फिर से देखो मैंने क्या बोला. अब एक बार फिर से समझेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने समझाया. और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए. मैंने क्या बोला कि when the reporting verb okay is in past tense or present tense of the direct change into corresponding of the past tense. अब वो क्या होता है ना, अपने corresponding past tense बदल जाता है. तो देखो सिंपल प्रेजेंट किसमें बदल गया? बताओ सब मेरे को. सिंपल प्रेजेंट किसमें बदल जाएगा इनडायरेक्ट बनाते वक्त? सिंपल पास्ट टेंस में. बोलो मेरे साथ. सिंपल प्रेजेंट किसमें बदल जाएगा? सिंपल पास्ट. वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस इधर सेड रहेगा. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहेगा? सेड रहेगा. तो अगर सेंटेंस में डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो भी किसमें चेंज हो जाएगा? वो भी किसमें चेंज हो जाएगा? वो भी आपका तो कौन से? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. यही कॉरस्पॉन्डिंग बता रहा है. यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में. तो वैसे ही बोलता है कि हम दो भाइयों को क्यों छोड़ते हो? इट मींस परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट विल आल्सो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट विल आल्सो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. वो किसमें चेंज हो जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट में. सारी बात समझ में ना. वो किसमें चेंज हो जाएगा? दैट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. ओके एवरीवन. उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वो भी किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. वो भी किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. फिर से समझना. जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट टेंस में. तो पहचानने का तरीका सर मेरे को नहीं आता है. एकदम
जो एकदम उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है ना, वो समझ लेना कि जहाँ पे सेड लिखा हुआ मिल जाए, जहाँ पे सेड, तो सेड क्या होता है, सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किसको बताता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, ठीक है, ग्रंथ के दूसरे अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था कि जहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और पास्ट को इंडिकेट करता है, राइट एवरीवन, एम आई राइट, मैंने बताया था ना, अरे बोलो सब, बस यही है, ज्यादा जो कुछ भी मैं लेक्चर बता रहा हूँ इसी पर ऑफ कोर्स सर, ओके वेरी गुड, ठीक है, तो चलिए, तो हमने जैसे देखा था, ओके ओके एवरीवन, ओके ओके ओके, तो मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वही है यहाँ पे देखो, सिंपल प्रेजेंट किसमें बदल गया, सिंपल पास्ट में। तब चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है, पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है। तब चलो इसको बनाओ, क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज अनवेल, वेरी गुड दिव्यांशु, क्या बात है, क्या बात है दिव्यांशु, गजब, क्वेश्चन बोलते नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आंसर। पीयूष बनाने की भी कोशिश करो, केवल कैमरा ऑन करके नहीं रखो, ट्राई टू मेक इट ऑल्सो, बनाओ पीयूष, वेरी गुड, सभी कोई का सही, क्या बात है, क्या बात है, काफी आप लोगों ने हैप्पी हैप्पी कर दिया इस क्वेश्चन को बना के, वेरी गुड एवरीवन, ऐसे ही भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बने रहे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, पिंकी ने भी सही बनाया। ये कौन है, निहारिका, क्या हो गया तुमको, इस होगा निहारिका, मैंने आपको क्या बताया, अभी ना बताया कि प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है, निहारिका क्या हो गया है, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है निहारिका, दिव्यांशु बोल रहे हैं कि सर योर वे ऑफ टीचिंग लेट अस अंडरस्टैंड वेरी मच इजी, थैंक यू दिव्यांशु, अब तुम रुला दोगे, बस करो, ओके आकाश, आई विल सी, निहारिका कहाँ पे आपसे रॉन्ग हुआ है, थोड़ा एक बार देखो अच्छे से, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है, यहाँ पे एम जो है, मैंने ये भी बार टेंस में बताया था, सोच लो सारा पॉइंट मैंने टेंस में ही कवर करवा दिया था, देख लो हर एक जो है ना एक दूसरे से लिंकअप है, लिंक है, अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैंने बताया था ना कि जब आपका इज एम आर होता है, जब मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में रहता है, तो एम वैसे ही सिंपल प्रेजेंट, मैंने फिर बताया था कि वैसे ही वाज वर्ड जब अकेले रहता है तो वो किसमें चेंज हो जाता है, आपका वो सिंपल पास्ट टेंस को बताता है। अरे बात समझ में निहारिका, से यस और नो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही वाज अनवेल ना, ही वाज अनवेल ना निहारिका, देखो यहाँ पे सेड है, वहां पे उस समय क्या था, से था, निहारिका ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस समय क्या था आपका रिपोर्टिंग वर्ड, आ गई बात समझ में, ओके चलो अब आगे देखते हैं, अब ऐसे ही, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब ऐसे ही क्या है आपका, देखो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स अ पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने ये बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहे, पास्ट टेंस में, अरे बात समझ में ना, तो देखो अब ये क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ सब, ही सेड आई एम राइटिंग अ पोएम, बनाइए आप लोग, सामने ही बना हुआ है, बनाओ तो आप लोग, सामने बना हुआ है ना, ही सेड आई एम राइटिंग अ पोएम, सेड में क्यों बदला हुआ है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, राइट एवरीवन, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, रेन इज स्टिल हैपनिंग, वेरी गुड, सभी कोई का सेम है, सामने लिखा हुआ भी है, बट ट्राई टू मेक, समझो कि आप आंसर नहीं देख रहे, ओके, यू ऑल आर वेरी ऑनेस्ट एज आई नो दैट, ओके, मेरे को मालूम है कि आप सभी काफी ज्यादा ईमानदार हो, देखो मेरे हंसने पे नहीं जाना, ओके, आई नो दैट यू ऑल आर ऑनेस्ट, ओके, सो समझो, सपोज करो कि आपके सामने इसका आंसर नहीं है, एंड ट्राई टू मेक इट, अगले बार से मैं हटा दूंगा, वेरी गुड,
मेरे को निहारिका क्या आप बताओगे यहाँ पे, क्योंकि आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, हम देख रहे हैं इधर। ये सेकंड वाले क्वेश्चन में माई मास्टर को हिज मास्टर में क्यों कन्वर्ट किए हैं, थोड़ा सा ये क्लियर करो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखकर फास्टली निहारिका। निहारिका बोलकर बताओ, बोलकर। स्पीक। बोलो तो निहारिका आप। Yes, sir. चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को डील करो, आंसर है यहाँ पे बट इसको आप डील करो। ये क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट की हो ये मेरे को बताओ। Am I audible, Niharika? Yes, sir. So speak little bit loudly. You have to speak. Okay, sir. Sir, Yes. कॉमा हटा के हम लोग डैट लगाएंगे। उसके Okay, बाद साइड को साइड में क्यों रखे हैं ये मेरे को क्लियर करो ना, एक एक वर्ड को क्लियर करो, ठीक है सर क्योंकि ये जैसे हाँ पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ड आप मेरे को बताओ, जैसे मैं बताता हूँ ना, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू दैट द सेम वे। ओके पहले एकदम एक एक चीज को बताओ। ही सेड सर ये रिपोर्टिंग वर्ड जो हमारा यहाँ पर है वो किस टेंस में है, दैट इज इन पास्ट टेंस। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है निहारिका, ओके तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो जब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहता है ना उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर प्रेजेंट में रहता है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलते हैं। तो यहाँ ये प्रेजेंट में किस प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये किस में चेंज होगा निहारिका, बोलो। नहीं आ रहा है समझ में क्या? सर आ रहा है। तो चलो बोलो, अब तुम बोलो। सर ये पास्ट कंटिन्यूअस में तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में है ये, तो देखो तो तुम दिमाग यहाँ पे है ना, यस सर। माइंड यहाँ पे है, राइट। यस सर। माय नेम माय मास्टर इज राइटिंग लेटर, ये लेटर्स ये कौन से टेंस में है, पास्ट में है। नो सर। कौन से टेंस में है निहारिका? प्रेजेंट में। मैंने बोला था ना कल सभी को ये स्ट्रक्चर सारा याद करके आएगा। कल सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर सुनूंगा, अगर लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आप लोगों से स्ट्रक्चर ही सुनूंगा। अरे बात समझ में ना, नरेशन आप लोगों का काफी स्लो हो गया है समझाने के लिए, जैसे ही आप लोग समझ जाओगे आगे मेरा फास्टली निकल जाएगा। जब तक ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा तभी हम लोग को इंट्रोगेटिव पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। निहारिका किस टेंस में है पहले बताओ तो मेरे को ये, माय मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इज है उसके बाद राइटिंग है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है निहारिका? कल आप मेरे को सारा स्ट्रक्चर और टेंस अच्छे से पढ़कर सुनाओगे, आ रही बात समझ में? इन योर नेक्स्ट क्लास समझ में आ रही बात ना, और अच्छे तरीके से रिवाइज करो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, आ रही बात समझ में? से यस और नो? यस सर। ओके तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट, और देखो माई जो है ना ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव को बता रहा है। तो माई मेरा क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का है ना, फर्स्ट पर्सन का पार्ट है माई, फर्स्ट पर्सन में आता है ना। यस सर। तो माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो हिज हो जाएगा, हिज मास्टर वाज राइटिंग लेटर्स, बहुत इजी है। वैसे ही चलो देखते हैं आगे, मूविंग अहेड। ओके एवरीवन चलो देखो, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। देखो ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन,
he said I have passed the examination. तो I have passed, have, has और उसके बाद verb 3 आता है किसमें? Tell me everyone. यहाँ पे भी दिख रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? जब ये आपका रिपोर्टिंग पर पास्ट में रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। देखो अब हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, he said फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट टू कोडिंग, तो ही हो जाएगा पास द एग्जामिनेशन। वैसे ही सेकंड वाला भी है, इसको आप लोग देखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसमें हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। देखो यहाँ पे सी हैड, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये क्या है? आई हैव बीन वर्किंग सिंस, टाइम भी लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका? कंटीन्यूअस में है। तो क्या हो जाएगा? सी सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सी, ओके, सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो गया। अब देखो एज अ रूल द सिंपल पास्ट टेंस, अब देखो ये तो था आपका प्रेजेंट का चारों टेंस क्लियर, प्रेजेंट का चारों टेंस क्लियर हो गया ना। वी हैव कंप्लीटेड द 4 टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, ओके, नाउ वी हैव टू सी पास्ट। ओके, रिमेंबर वन थिंग मोर, व्हेन वी वर रीडिंग टेंस इन especially tense, if I talk about past perfect, okay, past perfect, what I told in the beginning, I told that it is the past of simple past tense, it is also the past of simple past tense। मैंने बताया था ना ये past का past होता है past perfect, yes or no? किस किस को याद है? past के past को हम क्या बोलते हैं? past perfect बोलते हैं। किस किस को याद है? मैंने बताया था ना, लिखा भी था। ओके, तो यह बस इसी पॉइंट से याद कर लेना। जब आपका ओके, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। जब आपका व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ओके, एंड reported speech is also in simple past tense, while making that type of sentence in direct speech, we have to convert that simple past tense of reported speech is in past perfect tense। okay, in Hindi try to understand। okay, क्या मैंने कहा कि जब आपका, फिर से सुनिएगा, मैंने बोल रहा हूँ, फिर से सुनना मेरी शब्दों को अच्छे से बढ़िया तरीके से, कि जब ये आपका किस टेंस में हो, जब ये आपका किस टेंस में हो, तो पास्ट में हो, पास्ट में, ठीक है ना, कोई भी पास्ट, क्यों सिंपल ही पास्ट नहीं, कोई भी पास्ट, ठीक है। तो अगर इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच वाला भी जो इनक्लोज्ड में रहता है, उसी को ना रिपोर्टेड बोलते हैं। मैंने इतनी बार बोल दिया, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड तो क्लियर हो ही जाना चाहिए सभी को। ओके, तो जो वो सिंपल पास्ट में रहता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। इसमें चेंज कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट में। अरे बात समझ में है? तो देखो, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, ठीक है ना? अरे बात समझ में? अब देखो, आई फाउट विद अ टाइगर, तो ही सेड दैट, सेड यहाँ पे है, पास्ट में है, ये भी क्या है? पास्ट में है। फाइट फाउट वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, तो ये भी चेंज हो जाएगा किसमें? That will also change into past perfect। okay, तो देखो, he said that he had fought with a tiger। okay everyone, अब समझना। तो हमने देखा जनरली प्रेजेंट के चारों फॉर्म को कॉरस्पॉन्डिंग किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में। जब रूल क्या कहता है? जो रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो, तो सिंपल, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट वाला कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाता है। राइट एवरीवन, यस और नो? से यस और नो, से एवरीवन यस और नो, से यस और नो। अब देखो, पास्ट में क्या याद रखना है? पास्ट में 2 चीज याद रखना है। हमारी बात समझ में? तो पास्ट में 2 चीज क्या याद रखना है, उसको भी समझ लो। कौन कौन सा? तो सिंपल पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी आपका क्या है? पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। एक याद किए। दूसरा क्या, जब आपका कंटिन्यूअस टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी क्या हो आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें हो? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? समझना मेरी बातों को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वही देखो यहाँ पे है, ही सेड आई वाज प्लेइंग, यहाँ पे देखो
रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, अगर नहीं समझ में आया ना तो इसके नीचे लिखना शुरू करो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। आई बात समझ में? और यहाँ पे देखो आई वाज प्लेइंग, ये आपका क्या है? देखो सेंटेंस जिसको याद होगा ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे बहुत आसानी से उसको समझ में आ रहा होगा। आई वाज प्लेइंग, ये भी क्या आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट में बदल गया, शी हैड बीन प्लेइंग। ओके, अब देखो यानी बचा क्या? सिंपल पास्ट में आप बोलोगे कि सर आपने तो 2 ही टेंस की चर्चा की, पास्ट परफेक्ट कहाँ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ गया? तो जब भी ये दोनों आएगा ना तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सारी बात समझ में? अगर आपके डायरेक्ट में ये पास्ट वाला टेंस हो तो उसको आप पास्ट ही में इनडायरेक्ट में ही बनाना, पास्ट परफेक्ट में ही बनाना। डायरेक्ट में भी क्या आपका पास्ट परफेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में भी उसको किसमें बनाना? पास्ट परफेक्ट में। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहेगा? पास्ट टेंस में। ओके एवरीवन, गेटिंग? सभी को समझ में आ रहा है? अब चलो, अब फ्यूचर में मात्र 2 ही चीज देखना है, जहां पे आपको सेल होगा उसको शुड में चेंज कर देना है, जहां पे आपका सुमित, यही आपका क्वेश्चन था ना? अब समझना, किसने ये क्वेश्चन पूछा था इन द बिगिनिंग? किसने ये क्वेश्चन पूछा था? देखो सेल किसमें बदल जाता है? शुड में, और विल किसमें बदल जाता है? वुड में। अब देखो ना दिव्यांशु, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब समझना मेरी बात, अब मेरी बात को समझना आप लोग, ठीक है? आप समझना मेरी बात, दिव्यांशु समझना। मैंने यहाँ पे लिखा तो फ्यूचर में बस यही समझना है, और हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है एक टाइप, 2 टाइप हम लोग का कंप्लीट हो गया नरेशन का। ओके, जो कि आपको पहले भी पढ़ना था। तो he said to me I shall work at the night, ये आपका किस में है? फ्यूचर में है। तो मैंने क्या बताया? shall किसमें बदल जाता है? should में, will would में। अब देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, he said to me था, तो देखो यहाँ पे me मिल गया ऑब्जेक्ट, तो said किसमें बदल जाएगा? told में। बोलो सब मेरे साथ, किसमें बदल जाएगा? told में। he told me, इन्वर्टेड कॉमा हटा, that we will use here that। अब हम लोग किसका यूज करेंगे? that का। so he told me that, first person according to subject he, okay, first person according to subject he would, अब देखो ही के साथ would का क्यों यूज करें? जनरल में, जनरल सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर टेंस पढ़ाया था। ओके, जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था जनरल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? आई और बी के साथ किसका यूज करते हैं? आई और बी के साथ किसका यूज करते हैं? मेरे को सभी को मैसेज करके बताओ, जिसको ये याद है उसके लिए एकदम आसान है, और जिसको याद नहीं है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। तो आई और बी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? सेल का। वेरी गुड रागिनी, वेरी गुड पीयूष, सभी कोई मैसेज करो ना, इतने कम क्यों कर रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन में क्या हो गया? एनर्जी खत्म? अभी तो पूरी रात पढ़नी है, ऐसे ही इतना ही? थोड़ी देर पहले हम लोग दशरथ मांझी की बात कर रहे थे। ओके, अब देखो जो आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है जनरल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस के, उसमें क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। अब देखो सही बात है, यहाँ पे तो सेल था, लेकिन कहानी कैसे बदल जाता है? कहानी कैसे बदल जाता है? मैंने यहाँ पे यूज किया था आई, ये मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट में गए तो आई किसके अकॉर्डिंग चले जाता है? ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग आता क्या है? वुड आता है ना। ही के अकॉर्डिंग क्या आता है? विल आता है। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड वर्क एट नाइट। तो क्या कोई दिक्कत? द विल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू वुड और शुड। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? वुड और शुड में आप चेंज कर सकते हो। क्या क्लियर हुआ? वुड और शुड अब समझ में आया? सेल कैसे वुड में बदल जाता है? नो दिव्यांशु, ट्राई टू मेक इट इन दैट वे। ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही बनाओ। लिखने के लिए लिख सकते हो दिव्यांशु ऐसे। अगर फ्यूचर टेंस का सारा कंडीशन मैंने जो बताया था याद हो तब। अब चलो देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट। दे सेड वी शैल हैव डन आवर जॉब। दे सेड वी शैल हैव डन आवर जॉब। इस क्वेश्चन को देखो इंडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो दे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं है पिंकी, राइट? पिंकी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं है। ओके एवरीवन, तो देखो इसको जब हम बनाएंगे सेड का सेड ही रहेगा। दे सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा एंड वी हैव यूज्ड हियर दैट। आफ्टर दैट वी इज first person plural form, right? The first person will change according to subject, so we will write here they। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? they। और they के साथ हम लोग shall का यूज करते हैं या will का यूज करते हैं? बताओ मेरे को, आप लोग shall का यूज करते हैं या will का?
सभी को मैसेज करो और बताओ, बोलोगे सभी सर क्या है जी, पूछते तो विल, तो पास्ट में विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, वुड हैव। अब देखो यहाँ पे आवर है ना, आवर भी फर्स्ट पर्सन का क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये देयर में चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, व्हाटएवर वी हैव रेड टुडे, whatever we have read today, till is there any type of problem? No sir, everyone has to write message, ठीक है, सभी कोई मैसेज लिखेगा। दिव्यांशु लास्ट में देखो 5 बच्चे ना, सपोज करो 5 नहीं, एटलीस्ट 3 and 4 स्टूडेंट्स दे हैव लेफ्ट। जो ये 15 है ना, 15-16, ये समझ लेना ना, यही मेन है। अगर आप में पेशेंस है तो आप हर एक चीज हासिल कर सकते हो, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ देर के बाद सारा कुछ समझ में आने लगता है। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम में किसी को समझ में नहीं आता, ओके, बट आप फोकस करोगे तो मैंने एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया था, और अभी भी मैं एक सेंटेंस को आप देखते हो 2 बार 3 बार बोलता हूँ, ओनली फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ओनली फॉर यू ऑल, ओके। तो इस मेरी बात को समझिए आप लोग। अब देखिए देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू मेक, दिस इज योर होमवर्क गाइस, ओके, आपको बनाना है। और सभी कोई, वी हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स ऑफ नरेशन, ओके, नरेशन का हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आप फिगर बनाओ, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, थोड़ा टेंस को भी देखो, टेंस का सारा स्ट्रक्चर याद कर लो, ठीक है ना, 1-2 सेंटेंस को देखो और अपने से कोशिश करो कि कौन सा टेंस है। अगर इतना करोगे सारा कुछ समझ में आएगा, ओके। अड़ी बात समझ में, करना बस यही है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, पहला स्टेप ये समझो आप, ठीक है ना। दूसरा आप टेंस को पहचानो, ठीक है, अगर ये दोनों आ गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, रूल है जो मैंने अभी तो पढ़ा है, एक रिपोर्टिंग पर रिपोर्टेड स्पीच, ये पहचानने आना चाहिए। जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट में है तो टेंस में चेंज नहीं करते हैं, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ जाता है तो टेंस में चेंजिंग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। बस इतना चीज पर, इतना ही पर वर्क करना है, और जो अच्छे से वर्क कर लिया उसका नरेशन क्लियर, ओके एवरीवन। सो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके एवरीवन। मेरे को आशा है कि आप सभी को सारा पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आए, ओके एवरीवन। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ओके, एंड एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।